Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. This is the fourth or fifth lecture about your natural vegetation. Before this, we have discussed about the types of the natural vegetation, and with that, what kind of the climatic conditions affect the natural vegetations that we have discussed. And yesterday we talked about the evergreen forest, a kind of vegetation found in India, and we discussed about the tropical evergreen forest, their area, animal found in that area. So we have made some points in that. हमने उसमें कुछ points बनाए थे, and I hope you got it. So as I told you yesterday that I will make some points so that you can understand it easily. As I have told you that every question has some key points, so we just focus on the key point. हमें अपने जो key points हैं उन पे focus करना है. So I have made headings for this so that you can understand easily. So first we will talk about the general introduction of the forest. General introduction जो होता है forest को, उसके बारे में discuss करेंगे. Then we discuss about the rainfall, कितना हमें requirement है. सेकेंड थिंग विल टॉक अबाउट कि कौन कौन से एरिया के अंदर ये पाया जाता है, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर vegetation, and animal found into the vegetation and wildlife spotted by these vegetations. And finally we'll talk about that area of this particular vegetation in India. So हम लोग इंडिया के एरियाज के बारे में स्पेशली हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं. एंड द सेम थिंग विल टॉक अबाउट. Our today's topic is tropical deciduous forest that we have earlier discussed evergreen forest. Evergreen forest को हमने डिस्कस कर लिया था. अभी हम जो deciduous forest है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Before starting the topic, let us understand this deciduous forest. Why these are known as the deciduous forest? Because they shed their leaves. Because ये अपने जो पत्ते होते हैं गिरा देते हैं. That's why these are known the deciduous forest. And we will find out the classification of the forests in this version. कि आपका classification जो होगा हमारे पास, we have classified into the two categories like dry deciduous and the moist deciduous. Dry deciduous and the moist deciduous, the classification on the basis of the availability of the water. How much water required a particular kind of, or what kind of how much water is available in particular area. So because of the availability of the water, we classified these vegetation in moist deciduous and dry deciduous. As these names suggests, moist deciduous forests are the forests which receive more rainfall than the dry deciduous. It's very simple. The area which receive more rainfall, we find that moist deciduous vegetation, and the area which receives less rainfall as compared to the moist deciduous, so we will call them the dry deciduous. And we need to understand that the vegetation we are talking about, the deciduous forest, in common we call it the deciduous forest, but for our own benefit or as per the characteristics of the vegetation and the trees found in the particular area, we classify it into two categories. Let us start the topic. So what is we are going to talk about? Tropical deciduous forest. आज हम जो बात करेंगे deciduous forest के बारे में डिस्कस करेंगे. deciduous forest क्या होती हैं? See, it is the most widespread forest of the India. जैसा कि आपको पता है, हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था. दे आर इनटू द लिमिटेड एरिया वेयर वी फाइंड द रेन फॉर मोर देन 200 सेंटीमीटर. हमने जो बात की थी, जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, दे आर इन द लिमिटेड एरिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है. देयर आर फ्यू एरियाज, कुछ ही ऐसे एरिया जैसे वेस्टर्न घाट हमारे पास हो गया, ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हमारे पास, तो एंड ईस्टर्न कोस्ट एरिया हमारे पास हो गया जहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एंड if you talk about the abundancy, so deciduous forests are the most widespread forest in India. सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाया जाता है वो हमारे पास deciduous forest पाए जाते हैं. आपका द एरिया यू कैन सी, द deciduous forest का एरिया काफी बड़ा पड़ता है हमारे पास. इवन इट इज इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंट्री के लगभग सारे पार्ट में हमारे पास ये पाया जाता है, राइट. So most widespread forest in India, it is also known as the monsoon forest. अब हमने लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा था मानसून के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इनको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं. इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप की क्लाइमेट है, एंड इसीलिए हम इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि
इनको जो रेन जो मिलती है, इनको जो वाटर मिलता है वो रेन से मिलता है, और रेन हमारे यहाँ पे मानसून के टाइम में ही आती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द मानसून फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइड स्प्रेडेड है, सबसे ज्यादा हमारे पास पाए जाते हैं, मानसून फॉरेस्ट कहलाते हैं आपके। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। साल में एक टाइम ऐसा आता है जब ये अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, बिकॉज दे फेल्ट द शॉर्टेज ऑफ द वाटर एंड टू सर्वाइव इनटू द क्लाइमेट, उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए दे शेड देयर लीव्स, ताकि जो वाटर्स का वेपराइजेशन कम से कम हो सके। तो ये अपने जो लीव है उनको क्या करते हैं, आपका गिरा देते हैं, दे शेड देयर लीव्स। देन on the basis of the availability of the water, now how we have classified these forests, as I have discussed कि इनको जो classify किया गया है, जैसे पानी की availability होती है, according to the availability of the water, we have classified these forests into the two categories. One is moist deciduous, second is dry deciduous. Moist deciduous and the dry deciduous, let us understand with the heading of the moist deciduous and dry deciduous. हम इसमें जो discuss करेंगे दोनों ही जो हमारे वेजिटेशंस है उनको साथ साथ लेके हम चलेंगे। वी विल स्टडी टुगेदर अबाउट द बोथ डिसीडियस एंड द मींस मॉइस्ट डिसीडियस एंड द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। व्हाट वी हैव हियर, इट इज rainfall. Let us talk about the rainfall for this kind of vegetation. So it is very simple. The rain that is between 200 centimeter to 70 centimeters required for the almost deciduous forest. सभी जिस तरह के जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो रेनफॉल होती है, फॉरेस्ट उस एरिया में पाया जाता है वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड बिटवीन 200 एंड 70 सेंटीमीटर। एंड इफ द रेनफॉल in excessive way more than 200 centimeters, so we call them the evergreen forest, right? तो ये अगर हम कॉमन बात करें फॉरेस्ट के लिए, चाहे वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है या फिर मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, दे फाउंड इनटू द 200 centimeter to 70 centimeters of the rainfall. And if we particularly classify, then the dry deciduous forests are found in the region where rainfall is 100 centimeter to 70 centimeters. हम सिंपल सी बात करेंगे 100 to 200 सेंटीमीटर्स की अगर हम बात करेंगे, वहां पे मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं क्योंकि वहां पे रेन की अबंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, रेन वहां पे ज्यादा होती है। एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल होती है आपकी लेस रेनफॉल इज देयर, सो 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज मोइस्ट फॉरेस्ट एरिया, सो वेयर दीज आर एग्जिस्टेंस। अब हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, सो विल सी द मैप एंड विल फिल इट। हम मैप देखेंगे उसको फिल करेंगे। द फर्स्ट इज दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे पास ये जो हमारे पास पार्ट पड़ गया, ये नॉर्थ हमारे पास है, जैसे वेस्ट बंगाल हमारे पास हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये वाले एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे पास है। कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर हमारे पास ड्राई डिसीडियस थोड़े पार्ट में जो डिसीडियस फॉरेस्ट है वो हमारे पास पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज फुटिल ऑफ द हिमालय। हिमालय ये हमारे पास हिमालय है और ये एक फुटिल हो गया, तो इस रीजन में भी नैरो बेल्ट में हमारे पास ये फॉरेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं, वहां पे जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। झारखंड, वी हैव उड़ीसा। उड़ीसा का जो ये ईस्टर्न पार्ट होगा, ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट पार्ट ऑफ द उड़ीसा, उड़ीसा का वेस्ट पार्ट हो गया। छत्तीसगढ़ हमारे पास हो गया। हमने ये एरिया छोड़ दिया जहां पे आपका थ्रॉनी बुशेस पाई जाती है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल कम होती है यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है, इसलिए वहां पे हमारे पास डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। देन ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये हमारे पास वेस्टर्न घाट हो गया इस एरिया के अंदर। तो ईस्टर्न पार्ट हमारे पास, दिस पार्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, एंड दैट्स व्हाई इट रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन को रिसीव करते हैं। दैट्स व्हाई here we find the evergreen forest, यहाँ पे हमें evergreen forest मिलते हैं। which part of the western घाट, that is western part of the western घाट। western घाट का जो western part है उसमें हमारे पास evergreen forest मिलेंगे। western घाट का जो eastern part है वहां पर आपको deciduous forest आपको मिलेंगे। why it is so? ऐसा क्यों है कि western घाट के एक तरफ हमें evergreen forest मिलते हैं और दूसरी तरफ हमें deciduous forest मिलते हैं। there is a reason that we discussed about the pattern of the rain, हमने रेन के पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारी मॉनसून है that comes from the Arabian Sea and they strike to the eastern घाट, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने की वजह से रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होता है। जब स्ट्राइक करने के बाद ऊपर उठती है तो ऊपर के जो पीछे वाला जो एरिया होता है जिसको हम लोग रेन शेडो एरिया बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है, लीवर्ड साइड बोल देते हैं या फिर रेन शेडो एरिया बोलते हैं, ठीक है।
सो वेस्टर्न पार्ट इज विंडवर्ड साइड, जो आपने पढ़ा था विंडवर्ड साइड क्या था, जहां पे जिस तरफ से पवने आ रहे हैं उनके सामने पड़ने वाला एरिया, राइट, ठीक है। उसी तरह से लिवर्ड साइड का होता है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, या फिर उसको हम लोग रेन शेडो एरिया बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन को रिसीव नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बारिश होनी होती है वो सारी कहां पर हो चुकी होती है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पे हमारे पास बारिश हो चुकी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, एग्जिस्ट द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला का ये पार्ट जहां पे बारिश होती है हल्की फुल्की, वहां पर ये मिलता है। एंड द प्लेन्स ऑफ द बिहार, और ये बिहार के जो प्लेन हमारे पास यहाँ पर ड्राई डिसीडियस, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम रिसीव होती है इसलिए आपका यहाँ पे ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज ट्री, मॉइस्ट डिसीडियस ट्री की बात करें, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री हैं बहुत ही, देखिए इसमें हमारे पास जो मेजर इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, दे आर इन द हाइट मीन 60 मीटर से भी ज्यादा उनकी हाइट होती है। बट वन थिंग वी आर स्टडीइंग हियर कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो उनकी टिम्बर होती है वो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, काफी ज्यादा हार्ड होती है, एंड दैट्स वी आर अनएबल टू यूज इट, वो हमारे पास ज्यादा यूजेबल नहीं होती है। दूसरा, डेंसली फॉरेस्ट इन पे टिम्बर का, इनकी जो लकड़ी होती है उसका यूज करना भी मुश्किल हो जाता है आपका। वेयर वी टॉक अबाउट द डिसीडियस फॉरेस्ट, दीज आर नॉट दैट मच डेंस, इतने ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, घने नहीं होते हैं, क्वाइट इजी टू यूज, तो इनको यूज करना आसान होता है, राइट। और सबसे जो बेस्ट थिंग है अबाउट द डिसीडियस फॉरेस्ट की, जितने भी हमारी वैल्यूएबल टिम्बर्स, जो वी फाउंड द वैल्यूएबल टिम्बर्स इनटू द डिसीडियस फॉरेस्ट, जितने भी वैल्यूएबल टिम्बर्स होते हैं वो सारी हमें कहाँ मिलती हैं, आपकी डिसीडियस फॉरेस्ट मिलती है। जैसे आपका साल है, टीक है, रोजवुड है, राइट, सैंडलवुड है, राइट, तो ये सारे पीपल है, नीम है, ये सारे जो हमें यूजफुल जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं, वो हमें डिसीडियस फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अबाउट द डिसीडियस फॉरेस्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीज, सो ट्रीज टीक, साल, बेम्बू, सीसम, सैंडलवुड, कैर, अर्जुन एंड द मेलबरी। एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेलबरी, आप सबको पता है मेलबरी ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? यस, यू नो इट, दैट इज सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, फिर वहां से क्या बनाते हैं हम लोग, सिल्क बनाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेलबरी ट्री। सीसम आपको पता है फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज की जाती है। साल है, दैट इज ऑल्सो यूज, अर्लियर इट वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए, आज भी इसका यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी टिम्बर्स हैं जो कमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, यानी कि जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं दे आर कमर्शियली यूजफुल। नेक्स्ट वन, ड्राई डिसीडियस की बात करेंगे तो हमारे पास टीक, साल, पीपल, नीम एटसेट्रा। सो कॉमनली अगर हम बात करेंगे टीक, साल, नीम और पीपल, ये जो हमारे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में जो ज्यादा मिलते हैं, तो हमारा जो एरिया इस तरफ पड़ता है, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपका, तो ये वो एरिया है जहां पे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कम होती है, दैट्स व्हाई वी फाउंड हियर। ये सारे जो पेड़ है हमारे पास, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, यू कैन सी दीज ट्रीज इनटू द सराउंडिंग, लाइक नीम है, सीसम है, खैर है, या फिर आपका यू फाइंड हमारे यहाँ पे अर्जुन का पेड़ भी मिल जाएगा आपको। सो वी हैव इट। सो लीव शेडिंग टाइम, सो इफ यू टॉक अबाउट द लीव शेडिंग टाइम, सो दिस एज वी डिस्कस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो फॉरेस्ट होता है या फिर ये जो वेजिटेशन होती है अपने लीव को क्या करती है, शेड करती है, गिरा देती है। एंड द टाइम इज, इट इज टू बी शेड द एंड ऑफ द विंटर, यानी कि मार्च के आसपास, एंड द बिगिनिंग ऑफ द समर, यानी कि समर की शुरुआत जो आपकी अप्रैल के आसपास होती है। तो ये वो टाइम होता है जिसको हम लोग, हमारे पास ये जो फॉरेस्ट होता है हमारे पास समर सीजन के अंदर, क्योंकि आने वाली गर्मियां होती हैं और इसलिए वहां पे ताकि वेपराइजेशन कम किया जा सके, इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी लीव्स को क्या करते हैं, आपका शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। सो टाइम विल बी द समर सीजन। आप कह सकते हैं आपका कि समर सीजन की शुरुआत होते ही ये अपना जो लीव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मेजर जो कॉमन एनिमल्स हमारे हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है, और अबेंडेंट बर्ड्स हमारे पास मिलते हैं। वैरायटी ऑफ द बर्ड्स कोई स्पोर्ट करता है, इसके अलावा लिजार्ड है या फिर आपके स्नेक्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो ज्यादा संख्या के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे। सो दीज वर द एनिमल्स दैट फाउंड इनटू द एरिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट। सो एरिया, यू नीड टू रिमेंबर दिस एरिया, यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो एरिया हमारे पास यूज होता है, दिस इज जो हमारा एरिया है वो हमारा क्या है, डिसीडियस फॉरेस्ट का एरिया हमारे पास है। I hope this is all about
व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये वो सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें डिसीडियस वर्ड्स के बारे में. सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आपको अपने पॉइंट्स जरूर बनाने हैं, ताकि पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको इजीली लर्न हो पाएगा. हर एक जो हमारा वेजिटेशन है, इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो गो थ्रू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू से, टेक योर बुक, स्टडी बुक विद दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ताकि इसको बहुत अच्छे से समझ सकें. इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा. जो चीज आपको टीचर बताती है उसको फॉलो कीजिएगा. दैट इज रियली हेल्पफुल टू एनहेंस योर नॉलेज. वो आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में काफी ज्यादा मदद करेगी. इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी, और तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा. और आपकी जो लाइव क्लास होगी, श्योरली टुमारो वी विल हैविंग द लाइव क्लास, सो यू कैन कम टू द लाइव क्लास ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. अपने टॉपिक को अच्छे से समझना है या फिर आपकी कोई क्वेरी है, सो यू कैन डू इट. पैरेलली आई एम गिविंग यू होमवर्क इनटू द होमवर्क सेक्शन. मैंने आपको होमवर्क सेक्शन में आपको होमवर्क भी दिया हुआ है. प्लीज चेक द होमवर्क ऑल्सो. डोंट मिस दिस. इसको मिस नहीं करना है. आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए हैं, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, वैसे ही आपको लर्न करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास अभी कम्युनिकेशन का यही एक पर्टिकुलर मीडियम है. इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई मीडियम नहीं है. वी हैव टू डिपेंड ऑन द लाइव क्लासेस ओनली. हमें लाइव क्लासेस पर या फिर आपके वीडियोस लेक्चर्स पर या फिर आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उस पर ही हमें डिपेंड होना पड़ेगा, और अपनी जो क्वेरीज हैं वो इसी तरह से क्लियर करनी पड़ेंगे. सो दैट्स ऑल about the today's topic. See you next time. Bye. See you.